हलवा नहीं होता है. He is absolutely right that it's very difficult to do that. It's very challenging, and I can understand because I've been through it, and I know he's been through it. So it's really something that is very challenging, and hats off to what he's done. अभिषेक, आपने कहा सलमान आपके बहुत करीबी दोस्त है, लेकिन ऑफ लेट हम उनकी और शाहरुख की बॉन्डिंग काफी देख रहे हैं. रिसेंटली वो लोग साइकिलिंग करते हुए भी देखे गए थे. तो क्या आप काफी बिजी चल रहे हैं जो आपके उन्हें देखा कैसा? मतलब आपको क्या लगता है कि एक दफा मेरी दोस्ती होगी किसी के साथ और किसी से दोस्ती अब नहीं हो सकती? मुझे धोखा मत देना, किसी और का दोस्त बनना होगा. ऐसा थोड़ी होता है भाई. I'm very happy to know that Salman and Shahrukh are spending time together. They went out cycling. They are, chilling together. That's wonderful. It's really wonderful. Okay, Amir sir, when we see biopics towards your left, when we see biopics being made on people who are alive, the makers usually bring them towards when they promote the film. Do you have plans to do the same? Yes. Of course, we would like to speak to them. We would like to introduce them to all of you. At the right time, we'll be doing that. Amir, the film shows. Amir, the film shows women encouragement in sports. Yeah. Sorry. What? The film shows encouragement of women in sports, such as wrestling. So, do you think in India there's lack of encouragement for women in sports, and it should be increased? I think that जो patriarchal thinking है हमारे समाज में, वो हर चीज में affect करती है. स्पोर्ट्स में affect करती है. आप बच्चियों को मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो हम बच्चियों को पैदा नहीं होने देते. कोक में ही हम मार देते हैं. फीमेल फीटिसाइड कितना होता है हमारे यहाँ? तो एक तो हम उनको पैदा नहीं होने देते. अगर वो पैदा हो गए तो हम उनको वही शिक्षा जो हम अपने बेटे को दे रहे हैं वो नहीं देते. मैं हर इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल चीज बोल रहा हूँ. अक्सर ये हमने देखा है कि फिर बच्चियों को सही एजुकेशन नहीं मिलता, उस पर हम एजुकेशन पे खर्च नहीं करते, उसके हेल्थ पे हम खर्च नहीं करते, हम कम खर्च करते हैं. पहले लड़के को खिलाओ भाई, दूध है तो उसको पिलाओ. तो ये सारी चीजें जो हम देखते हैं हमारे समाज में, हर घर में ऐसा नहीं होता. मेरे घर में कभी ऐसा नहीं हुआ. मेरी 2 बहनें हैं, 2 भाई हैं, हमें हमेशा इक्वल ट्रीटमेंट मिला है. लेकिन कई जगह ऐसा होता है. तो हमें ये बात मान लेनी चाहिए कि हमारे समाज में ये सोच है, और कोशिश हम सबकी ये हो कि हम इस सोच को धीरे धीरे लोगों के दिल में से उस सोच को बदलें. और अल्टीमेटली जब लोगों का दिल बदलेगा, जब उनके जज्बात बदलेंगे, तभी ये बात बदलेगी. Amir, when you said that poster आप कोने में रखना चाहेंगे सुल्तान के रिलीज पर so that people would also see it, are you implying the fact that Salman is today a bigger star than you? He's always been a bigger star than me. इसमें नहीं क्या बात है. I've always considered Salman a bigger star. I've always considered Shahrukh a bigger star. I've always considered Amit ji a bigger star. And there are a host of stars who I feel are very, very huge in India. There's Hrithik, there's Ajay Devgan, there's Ranveer. So many actors who are hugely popular. It's very difficult to compare कौन आगे कौन पीछे. वो उस comparison में जाते नहीं. But I do feel that when I see Salman walking into a room, ऐसा लगता है कि स्टार आया है. मैं एंटर मारता हूँ तो लगता है कि कोई वेटर आ गया. I'm sorry, I shouldn't say that because waiters are great people. I am a waiter. I shouldn't say that. But I feel that when I walk into a room, I feel कि कोई nobody आया है. मैं चुपके से कॉर्नर में एंटर होता हूँ और जाके खड़ा हो जाता हूँ. It's Salman who enters. Shahrukh, when Shahrukh enters, you feel a star has entered. वो quality है ही नहीं मेरे में. So to answer your question, yes, they are both bigger stars than me. आमिर एक सवाल है आपसे. अभी आपने कहा कि जो लड़कियां हैं वो पेट में ही मार दी जाती हैं या उनको ज्यादा प्रिविलेज नहीं मिलता है, और हरियाणा तो इस मामले में सबसे नंबर 1 पोजीशन पे है हमारे देश में. तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इसके लिए भी जिस तरह से आपने अतिथि देवो भव और ऐसे ढेर सारे कैंपेन किए हैं, सत्यमेव जयते में भी कहा है, वैसे इसके लिए भी आपको एक अलग से प्रयास करना चाहिए? और दूसरी बात कि आप यही तो हमारा प्रयास है. ये जो फिल्म हमने बनाई है, ये सबसे बड़ा प्रयास है. आप देखिए तारे ज़मीन पर का कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ देश भर के बच्चों में, देश भर के पेरेंट्स में. 3 इडियट्स का कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ एजुकेशन में. तो मेरे समझ से यही तो हमने 2 साल जो लगाए, मैंने 2 साल लगाए, नितेश जी ने 4 साल लगाए, यही तो हम कर रहे हैं. यही तो हमारी कोशिश है. और आपकी बेटी भी स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट लेती है, तो आप उसको किस तरह से? आयरा का इंटरेस्ट है बहुत स्पोर्ट्स में, एंड शी इज आल्सो इंटरेस्टेड इन पेंटिंग. शी इंटरेस्टेड इन डिफरेंट थिंग्स. एंड बोथ रीना एंड आई एंड किरण
we encourage our kids to do what makes them happy and to learn about things that they are interested in always. Avi sir, yeah. अक्सर ऐसा होता है कि जब बायोपिक बनती है बॉलीवुड में खासकर, तो जिस पर बायोपिक बन रही होती है उसे थोड़ा हम ग्लोरीफाई करते हैं। ऐसा पॉसिबल लाजमी है कि किसी भी हीरोज में भी फ्लॉज होते हैं, लेकिन बॉलीवुड में अक्सर ग्लोरीफाई किया जाता है। तो क्या इस फिल्म में महावीर जी के नेगेटिव एस्पेक्ट पे भी फोकस किया जाएगा, या ऐसी कोई इसे ग्लोरीफाई नहीं करने की कोशिश आप क्या करेंगे इसमें? आई थिंक नीतीश जी इस आंसर को बेटर जवाब दे पाएंगे, बिकॉज़ दो हमारे मेरे मन में भी जवाब है, लेकिन आप राइटर डायरेक्टर हैं, आप बताइए। एक्चुअली इसमें इतना ग्लोरीफाई करने की हमने कोई चेष्टा नहीं करी है। इस फिल्म में जितना रियल रख सकते हैं हम लोग उतना ही रियल रखने की कोशिश की है। इनफैक्ट महावीर सिंह का जो कैरेक्टर है वो भी एकदम क्लोज टू बीइंग परफेक्ट नहीं है। एक वक्त है महावीर सिंह की लाइफ में जब उसे बेटा चाहिए, और बेटे की चाहत में ही 4 लड़कियां होती हैं उनको। तो ऐसा नहीं है कि उनका जो कैरेक्टर है वो एकदम परफेक्ट है, बट फिर कैसे कहानी आगे बढ़ती है और क्या होता है वो अभी मैं बता दूंगा तो फिर इतना कुछ मतलब नहीं रह जाएगा। बट यस ऐसा कुछ अननेसेसरीली और अनरीजनेबली ग्लोरीफाई करने की ऐसी कुछ खास प्रयास तो नहीं। आमिर आपसे सवाल है, आमिर अगर मैं गलत नहीं तो ये चौथी स्पोर्ट्स फिल्म है आपकी। अव्वल नंबर आपने की थी देवानंद के साथ, और उसके बाद जो जिंदा सिकंदर, फिर लगान की, और ये चौथी फिल्म है जी दंगल। तो आपको क्या लगता है बॉलीवुड में स्पोर्ट जो जॉनर है वो कितना इवॉल्व हुआ है? आपको क्या लगता है इस बारे में? यकीनन लगान से अगर हम देखें जो 2000 में आई थी, 2001 में आई थी, तब से, क्योंकि उससे पहले कोई फिल्म स्पोर्ट्स फिल्म वर्क नहीं हुई थी। लगान से पहले कई बनी थी, कामयाब नहीं हुई थी, जो जहाँ तक मुझे याद है। तो लगान पहली फिल्म थी जो स्पोर्ट्स फिल्म थी, जो बहुत बड़ी कामयाब हुई थी। और उसके बाद लगातार कई फिल्में आई, चक दे इंडिया आई जो स्पोर्ट्स पे थी, और भी कई फिल्में आई हैं जो बहुत कामयाब हुई हैं। तो यकीनन वो सिलसिला शुरू हुआ है, स्पोर्ट्स फिल्में अब बनने लगी हैं और अलग अलग स्पोर्ट्स पे बनती हैं। बॉक्सिंग पे है, हॉकी पे है, क्रिकेट पे है, फुटबॉल पे है, फुटबॉल पे भी एक बनी है। तो इट्स गुड टू हैव डिफरेंट जॉनर्स। Last question, please. Last question. मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि आपकी जो वाइफ बनी है साक्षी तंवर, उनकी कास्टिंग प्रोसेस के बारे में हम जानना चाहेंगे आप दोनों से। और इसके लिए मल्लिका शेरावत ने भी ऑडिशन दिया था, हमने उन्होंने खुद ट्वीट किया था इस बारे में। हाँ, नहीं देखिए ऑडिशंस तो हम कई लोगों के लेते हैं और उसके बारे में हम बात नहीं करते किसका हमने ऑडिशन लिया है, वो सही नहीं होता। लेकिन साक्षी जी के बारे में मैं जरूर आपको बताऊंगा कि एक्चुअली साक्षी जी का थॉट मेरे माइंड में पहले आया और मैंने नीतीश जी को सजेस्ट किया कि शुड वी ट्राई साक्षी जी, शुड वी टेस्ट हर, क्योंकि मेरे माइंड में थी मेरी अम्मी जो है वो टीवी सीरियल्स बहुत देखती हैं, शी लव्स साक्षी। तो आई टोल्ड नीतीश जी कि यार लेट्स ट्राई हर, एंड नीतीश जी ने टेस्ट लिया, नीतीश जी को पसंद आया टेस्ट, एंड दैट्स हाउ शी वाज कास्ट, एंड शी इज फैंटास्टिक, आई टेल यू। मतलब तब तक तो सिर्फ कास्टिंग की बात थी, जब हमने शूटिंग पे हम आए तो साक्षी इज सच अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस, अनबिलीवेबल। मतलब वो एक टेक पे परफेक्ट टेक देती, पहले टेक। और not only is she skilled, but she's so wet with emotions. So there's a deadly combination of real skill with, you know, feeling the shot while you're doing it, which I find that very rare, you know. And every shot she does that. मतलब मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ और वो ढम 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 बॉल को सिक्सर मार रही है, मुझे लग रहा है 7 टेक 8 टेक। She's fantastic. I just loved her, and she's such a joy to work with. Really wonderful to work with. एक इंटरव्यू के दौरान आपने कहा था कि अगर आपको कुछ हो जाता है, खुदा ना करे कुछ हो जाए, आपने कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाता है मूवी के दौरान, हाँ। रणवीर सिंह या रणवीर कपूर को आप कास्ट करने के लिए नहीं, नाम तो मैंने सोचे नहीं थे उस वक्त लेकिन ये थॉट मुझे अक्सर आता है हर फिल्म में। मैं बताऊं आपको, हर फिल्म जब आखिर तक पहुंचती है तो मुझे लगता है अरे यार अभी 1 हफ्ता रह गया, अगर मुझे कुछ हो जाए तो अपनी पूरी जो मेहनत है 90 दिन की शूटिंग, वो सब वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं 7 दिन पहले मर गया या कुछ हो गया। ये थॉट मुझे हमेशा आता है। अच्छा, थॉट इसलिए आता है, मैं सोचता हूँ कि प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं अपन,
उसको सॉल्व करने के लिए। तो मतलब कर तो कुछ नहीं सकते, ऊपर वाले के हाथ में, जो होना है वो होगा। लेकिन इस फिल्म में मैंने नीतीश जी को एक पॉइंट पे बोला, वही उदय यू आर ऑन दैट, तो मैंने नीतीश जी को बोला कि देखिए नीतीश जी, मेरा मोटा पोर्शन जो है ना 80% जो फिल्म है वो तो हो चुकी है, अब बची है 10-15% जो अपना यंगस्टर की है। खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो गया तो आप किसी और को कास्ट कर लेना जो मेरा महावीर का यंग पार्ट करेगा, लेकिन अपना जो 80% बना है वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए। मैं अब कहाँ सोच रहा, मैंने सोचा भी नहीं था। आपने सोचा? नहीं सोचा आपने, चलिए अच्छी बात है, आपने नहीं सोचा। Sorry? When is the trailer expected? You know, we are still working on the trailer. So as soon as we are ready, I can't say yet when. When am I planning to watch Sultan? The moment it comes in the theaters. Yeah, 6 July. Hopefully I'll see 6 soon enough. कोशिश करूँगा जल्दी से देख। Thank you so much everyone. Thank you so much. चलो भाई बाइट करो भागो क्या उसका अरे ये